I have very big dreams and goals to achieve, but sometimes I feel like that's nearly impossible. How do I deal with this feeling? What if I fail? I just want some reassurance that I will still be loved in this family. I will still be loved and seen for who I am. I feel frustrated at myself. So how do I deal with that? मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स उनको बता रही हैं that you are in pain. You need some help, you need some support. जब हम अपने किसी सेम एज के दूसरे बंदे को देखते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर उसकी एक स्ट्रेंथ है, वो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन हमारी वहाँ पे वीकनेसेस हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक एम्बैरेसमेंट की फीलिंग आपके अंदर आती है। पेरेंट्स भी आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, अच्छा वो तो उसने ABC सुना दी, मेरे ने तो अभी शुरू ही नहीं की। ये एक ऐसी चीज़ है जो ना हम शुरू से सुन रहे होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अब आपको कोई ना भी कह रहा हो तो जैसा आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया एक चीज़। Assalamualaikum, मेरा नाम हनीन फरहान है and I'm 14 years old. I asked a few of my friends and I have a few questions for you as an advisor and I would like for you to answer them. Number one, I get very overwhelmed when I think about my future and my academics and the next few years of my school. And I feel like I have very big dreams and goals to achieve, but sometimes I feel like that's nearly impossible. How do I deal with this feeling? Oh, my heart really goes out to your friend who's somehow she's gotten these messages about herself from the grown-ups in her life that she needs to do this many things to become someone, you know. So I would like her to have an honest conversation about this with her family and say that I'm feeling a lot of pressure about all the things I have to do, and I do want to do those things. But I also want to know कि what if I fail? What if अगर मैंने 10 चीज़ें रखी हैं उसमें से मुझसे इतनी ये चीज़ें ना हो सकें, फिर क्या होगा? You know, I just want some reassurance that I will still be loved in this family. You know, that I will still be loved and seen for who I am. Because other than what she does, she's your friend, right? You can see she must be a lovely person, you know, she must have many wonderful qualities. तो अगर वो ये कुछ ना भी accomplish करे, you would still love her, right? And so sometimes teens tend to forget that कि आपकी जो लाइफ का हिस्सा है उसमें ये भी करना है, O levels हैं, A levels हैं, फलां एग्ज़ाम है. So yes, those things are great, but they're just a small part of life, you know. A really big part of your life is your relationships, you know, and that's where you really get true fulfillment from. So even research and studies tell us कि वो लोग सबसे ज़्यादा successful होते हैं जिनके relationships strong होते हैं. So she can get some support around that. मेरा second question ये है कि I feel extremely disappointed and hurt by myself when I compare myself to the person that I used to be couple of years earlier. I think pandemic के बाद मेरी हालत emotionally, socially, academically, it's not been as well as it was before the pandemic. And I feel frustrated at myself. So how do I deal with that? Well, I first want to tell her like she's doing such an awesome job of, she or he, whatever, they're doing an awesome job of being attuned to their feelings. You know, that's a very healthy thing. अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें feelings दी हैं ताकि वो हमें information दे सकें हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में. तो उनकी फीलिंग्स उनको क्या बता रही हैं? मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स उनको बता रही हैं दैट यू आर इन पेन, यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम सपोर्ट, एंड दैट्स व्हाट शी डिज़र्व्स. सो आई वुड encourage her to hopefully seek a helpful grown up, जो भी है, अगर उनके पेरेंट्स हैं, कोई टीचर है, स्कूल काउंसलर है, और उनके साथ वो ये शेयर करें कि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए. और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब जी सब कुछ ख़त्म हो गया, पहले वो ऐसी थी अब वो ऐसी हैं, यू नो. पहले वो ठीक है जैसी भी थी, बट ये जो पेंडेमिक है और इससे सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं. और जो सिम्टम्स वो डिस्क्राइब कर रही हैं, दे आर जस्ट सिम्टम्स ऑफ योर बॉडी टेलिंग यू either you're tired or you're alone or you need some support and help from others. थोड़ी सी, you know, sort of self-care kind of thing. ठीक है, maybe a break from all the expectations. थोड़ा सा रेस्ट कर लें. अच्छा, अगर इस दफ़ा ग्रेड्स बहुत आला ना भी आए तो कोई बात नहीं, you know, लेकिन आपकी ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट ग्रेड्स यू गेट, you know. So inshallah seeking some support around that. Okay. Achha, my last question is to you from me.
If someone comes up to me, my friend or my classmate or someone I know, someone I love, they come up to me and they show me, very severe signs of something like depression, they feel very worked up at home, घर पे उस तरह की family support network नहीं मिल रही है, and self harm कर रहे हैं, या फिर मतलब they're not well mentally. How do I, as a friend in my capacity, approach them and try to solve or try to make their life better? Yeah, I think just that you seem to have so much empathy for this friend of yours goes a long way. कि अगर आप अपनी friend को इस तरह के टॉक्सिक मैसेजेस नहीं दे रही हो कि तुम और कोशिश करो ना, जस्ट ऐसा करो ना, बस तहज्जुद ज़रूर पढ़ लिया करो, उससे ना सारे मसले हल हो जाते हैं. अगेन, नॉट दैट देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद तहज्जुद, बट ऑब्वियसली शी इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, शी इज़ ऑलरेडी टेलिंग यू कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझसे तो नॉर्मल चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं. सो शी हैज़ अ ह्यूज, हर बॉडी इज़ गिविंग अप ऑन हर, तो उसको और सपोर्ट चाहिए. और you are one of the people she's feeling very safe with कि वो आपको आके बता रही हैं. तो सबसे पहले आप अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो कि you just listening, you just saying कि अच्छा what would you like to do, आपका क्या मूड हो रहा है. और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है और आपका घर एक सेफ स्पेस है, inviting her over, having that positive experience, if you're feeling safe, telling your parents कि वो बच्ची थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है और उसके घर में नहीं है सपोर्ट, और घर वालों की भी बहुत डिफरेंट मजबूरियाँ होती हैं, शायद उनको अगर अवेयरनेस हो, रिसोर्सेज हो, तो वो उसको सपोर्ट कर पाएंगे. बट एंड देन इफ़ पॉसिबल मे बी योर मदर कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हर मदर कि I know a really good play therapist, it's really awesome, and really normalizing, like sometimes parents get very कि हाय नहीं मेरा बच्चा ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, so just having a very sort of vulnerable approach कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी like you can talk about your own experience around mental health and just sort of normalize her experience. That's it from my side. Thank you so much. Thank you so much, Aneen. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Bazil Haider and I'm 16-year-old. बेसिकली माई क्वेश्चन इज़ कि बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि हर बंदे की अलग अलग कहीं पे किसी स्किल के अंदर ग्रैब्स, मतलब किसी स्किल के अंदर अच्छी ग्रैब होती है किसी की, कहीं पे कहीं वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं अलग अलग. तो जब मैंने भी ये चीज़ फ़ील किया और मैंने बाकी लोगों से बात की, उन्होंने भी अक्सर ये चीज़ फ़ील की है कि जब हम अपने किसी क्लासमेट को या किसी सेम एज के दूसरे बंदे को देखते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर या किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर उसकी एक स्ट्रेंथ है, वो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन हमारी वहाँ पे वीकनेसेस हैं, हम वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसके अंदर जो है वो एक एम्बैरेसमेंट की फीलिंग आपके अंदर आती है कि यार वो भी तो मेरे जैसा ही है, वो भी सेम सर्कमस्टांसिस के अंदर है, उसको वो स्कोप क्यों कर पाया उसके अंदर और मैं क्यों पीछे रह गया उसके अंदर. तो ये वाली एम्बैरेसमेंट की जो फीलिंग आती है, तो फिर वो जो है ना मेंटली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है दूसरी चीज़ों से कि मैं क्यों पीछे रह गया. तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जो इस तरह की डिस्ट्रैक्शन जब कभी क्रिएट होती है तो उसको मैं एज अ चैलेंज लें और फिर उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसकी तरफ जाएं, या ये इस फीलिंग को डिसमिस कर दिया जाए उसको, क्योंकि अगर ये आपकी मेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट करिए तो जाहिर सी बात है आपके लिए अच्छी बात नहीं है वो. इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. और आपकी जो अवेयरनेस है ना अपनी फीलिंग्स के बारे में, वो इतनी अच्छी है, आपने इवन एम्बेरसमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है. तो कोई भी जो फीलिंग आती है उसका एक मकसद होता है, वो हमें कुछ बताना चाह रही होती है. और जैसे आप बता रहे हैं कि एम्बेरसमेंट ना आपको एक बड़ा क्लियर सा मैसेज दे रही है, वो आपको ये कह रही है कि यार आप पीछे रह जाओगे, दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे. ठीक है, अब ये एक ऐसा मैसेज है जो बच्चे बचपन से सुनना शुरू करते हैं. ठीक है, उसको देखो वो तेज़ चल रहा है. अगर आपने कभी छोटे बच्चों को देखा ना तो उनके पेरेंट्स भी आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, अच्छा वो तो उसने ABC सुना दी, तो मेरे ने तो अभी शुरू ही नहीं की, वो तो 4-6 दुआएं बोल रहा है. राइट. सो ये एक ऐसी चीज़ है जो ना हम शुरू से सुन रहे होते हैं. तो अब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है. जब हम बड़े हो जाते हैं तो अब आपको कोई ना भी कह रहा हो तो जैसा आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया, एक चीज़ देखी है, और ये एक मतलब हमारी सोसाइटी का हिस्सा है. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो आप ये एक्नॉलेज करो अपने लिए कि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं. जैसे आपने शुरू में बोला ना, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं. अगर किसी की वो स्ट्रेंथ है तो वेरी गुड, आपकी अगर नहीं है तो फिर आपकी क्या स्ट्रेंथ है. राइट. सो हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि जो स्ट्रेंथ बेस्ड
अप्रोच होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है. सो इवन जिस तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आजकल स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच को माना जाता है. उसका ये मतलब होता है कि हर इंसान की कोई स्ट्रेंथ होती है, उसी के ऊपर फोकस किया जाए तो वो इंसान अपनी जो कम स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर लेता है, या कम से कम मैनेज कर लेता है अगर वो इफ़ दे सर्व दैट पर्सन. ठीक है. लेकिन अगर हम वीकनेसेस के ऊपर जाएंगे कि नहीं स्ट्रेंथ को छोड़ो, जो वीकनेस है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो हम दोनों में रह जाएंगे. ठीक है. सो आपने जो फर्स्ट सिनेरियो मुझे बताया था वो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. फर्स्ट सेकंड तो डेफिनेटली कभी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा सुनना चाहिए कि वो हमें कहना क्या चाह रही हैं. ठीक है. उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि बजाय इसके, और कंपैरिजन एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, इतनी नेचुरल चीज़ है कि हम उसको करते ही नहीं हैं, वो हो जाती है. ठीक है. अब कंपेयर जब भी हम कर रहे हैं तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यार मैं चाह रहा क्या हूँ इस सिचुएशन में. अब जिस तरह अगर आप अपनी बात करो तो क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप बहुत ज़्यादा एथलेटिक, आपको अच्छा फील होता है एथलेटिक्स में? हाँ, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं, ऐसे किसी में अच्छा लगता है कि हाँ ये खेलना चाहिए, कुछ में नहीं अट्रैक्शन होती कि हाँ इसमें क्या है, इसमें नहीं खेलना. सो किसी कोई स्पोर्ट है जो आप खेलना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो. ठीक है. आप कौन से तरीके से उसमें बेहतर हो सकते हो. ठीक है. अब आप मतलब दिस इज़ योर जर्नी, यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. और आपने ये डिसाइड किया कि यार ये स्पोर्ट मैं जब खेलता हूँ ना तो मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो आप देखो कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप जैसे वो इम्प्रूव कर सकते हो उस स्पोर्ट में. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपने देखना है कि ये चीज़ मेरे इंटरेस्ट की भी है या नहीं. क्योंकि अगर आप सिर्फ इसलिए हम किसी चीज़ में जा रहे हैं कि वो एक सिंबल है ना कि भाई लड़के जो होते हैं ना वो ये चीज़ें करते हैं, और जो लड़के जो है वो कोई और स्ट्रेंथ होती है, आपका क्या लाइक व्हाट वुड यू से इज नंबर वन इंटरेस्ट? मैं क्रिकेट अच्छी लगती है मुझे. अब क्रिकेट के अंदर मेरी बैटिंग साइड मुझे अच्छी लगती है. अच्छा. और आप अच्छे बैट्समैन हो? नहीं. ओके. सो यू वांट टू गेट बेटर. हाँ. ओके. ठीक है. सो दैट्स यू कैन साइन अप फॉर अ क्लास, यू कैन आस्क अ फ्रेंड कि यार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया करो. राइट. यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आप कुछ कर सकते हो उनमें से चीज़ें ट्राई. यस ऑफ कोर्स. ठीक है. और क्या इंटरेस्ट है आपको? डिफरेंट स्पोर्ट्स के अलावा भी डिफरेंट स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट है मेरा, और मैं कोशिश भी करता हूँ बेहतरी लेकर आने की दिन ब दिन, और होती भी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट. ओके. सो डू यू डू लाइक डिबेट्स एंड थिंग्स? Yes, I do. Acha, and how do you do in debates? Do you get prizes? Do you? Yes, I there have. you go. So that's your strength, right? लेकिन it is maybe not a very traditional के वो you know something जो people like to brag about कि यार वो बड़ा टफ लड़का है, वो ना speeches बड़ी अच्छी करता है. इस तरह से लोग नहीं कहते ना, लोग ज़्यादातर कहते हैं बड़ा टफ लड़का है, उस स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है. राइट. सो स्पोर्ट्स इज समथिंग पीपल एसोशिएट मोर विद बॉयज़. ठीक है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस ना करो. अगर आपकी स्ट्रेंथ स्पीकिंग है, दैट इज़ वंडरफुल. ओबामा, लुक एट ओबामा, वो अपनी ओरेशन के ऊपर सारे कहते हैं कि वो अपनी ओरेशन पे सिलेक्ट हुआ है, प्रेसिडेंट बना है. सो वन डे यू कैन बी एन अमेजिंग लीडर बिकॉज ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स. तो सवाल यहाँ पर ये है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम दूसरे के साथ गुड बिहेवियर भी रखें, अच्छा बिहेवियर हो हमारा, लेकिन हम ऐसी बाउंड्रीज सेट कर पाएं उसके साथ कि वो हमारा उस बिहेवियर का फ़ायदा ना उठाए या हमें उसकी वजह से नुकसान ना पहुंचे हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से. So, आपने खुद ही बाउंड्रीज का वर्ड यूज़ किया ना. सो बाउंड्रीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में, बल्कि अपनी अच्छाई को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है कि आप बाउंड्रीज इस्तेमाल ना करें. तो बाउंड्रीज इस्तेमाल करना इसलिए मुश्किल होता है कि हमारे माशरे में स्पेशली जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बाउंड्रीज़ का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. इवन जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ बाउंड्रीज़ रखने में थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं. सो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती. हमें ऐसे लगता है कि अगर हमसे कोई फेवर मांग रहा है और हम उसको नो कर देंगे तो अब वो हमारा फ्रेंड नहीं बनना चाहेगा. ठीक है. लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है. ये आपके अगर कोई भी आपसे आके ये चीज़ शेयर करे तो आप उसे पूछें कि आपको कभी किसी ने नो कहा है और फिर आपने क्या उनसे नफरत शुरू कर दी उसके बाद. सो दे विल मोस्ट प्रॉब्ली से कि नहीं, मुझे तो अक्सर लोग नहीं कहते बल्कि मैं ही हर किसी को हाँ कह रहा होता हूँ, लोग तो मुझे अक्सर नो कहते हैं. सो डू यू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद देम देन? नो, ऑफ कोर्स नॉट. राइट. सो इनकरेज देम टू रिस्पेक्ट देयर ओन बाउंड्रीज, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम औरों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं. तो आपके फ्रेंड को चाहिए कि वो खुद ये सोचें कि यार ये इस वक्त मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ ये मेरे लिए ईजी है या नहीं.
तो आप वही चीज़ें करें जो आपके लिए ईजी हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को कुर्बान करके जो है सिर्फ इसलिए कि लोग आपसे नाराज़ ना हो, दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। अ गुड फ्रेंड विल स्टे योर फ्रेंड, यू नो। इफ़ आई टेल यू कि आई एम सॉरी मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, तो अ गुड फ्रेंड विल से अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, राइट। और अगर कोई वाकई में आपसे नाराज़ हो जाता है इस बात पे, तो फिर मसला तो उनके साथ है ना, आपके साथ तो नहीं है। Does that make sense? और फिर देखिए आप जैसा कह रहे हैं कि अगर आप हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम एक दिन रूड हो जाएंगे, फिर हम वाकई में दूसरे की फीलिंग्स हर्ट कर देंगे। तो उससे बेहतर है ना कि हम पहले ही अपनी टेक केयर कर लें।